Hello, friends. I'm happy to present this session on practical aspects of merger and acquisition. Primarily, this is for secretarial students, secretarial pass out students who are undergoing their 15 days training. The session is known as Practical Aspects of Corporate Restructuring, Merger and Acquisition. What I'm going to cover here secretarial procedures as well as the practical procedures from the management angle, why we do mergers, etc. We'll make the session very short, say 15 to 20 minutes. I'll try and be helpful to the budding company secretaries primarily, and in general, the finance and the secretarial and treasury professionals. So, guys, M&A is a very, interesting subject. Corporate restructuring is an interesting subject. Various laws, regulations, policies, procedures around corporate restructuring, M&A. There are multiple types of restructuring. So, for example, you need to do financial restructuring. What do you mean by financial restructuring? Asset liability कुछ mismatch हो गया. You are over debt. You have to insert more equity. If you have less equity, you have to increase the debt ratio and all that stuff. Internal restructuring within the company, within the subsidiaries, or within the same, in a way, group. We do restructure, कुछ एक नई entity बना दी, कोई एक subsidiary थी उसको merge कर लिया and all that stuff. और restructuring हर यूनिट के लिए अलग अलग सीईओ थे. अब या तो एक यूनिट अलग करके उसको अलग सीईओ दे दिया, उसको एक अलग बिजनेस लाइन बना दिया, कुछ एक दो वर्टिकल्स को मर्ज कर दिया. इट्स ऑल यू नो सो कई बार बोर्ड पे भी एडिशनल स्ट्रेंथ डाल दी. एक्सटर्नल इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं. एक्सटर्नल मीन्स व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअली merger or divestment transaction with a third party. Fine. So now let's go to the practical aspects. So there are taxation plays a crucial role in all M&A deals. Generally in internal, including in the external, because external में थोड़ा कम होता है, but they may have a long term view. So in case you have accumulated losses in one line of business, when line of business is doing losses, it is always advisable to merge it in another line of business which is making profit, so that at a combined entity you need to pay taxes only on the net profit. एक ही कंपनी होगी, अदरवाइज तो टैक्स एंटिटी वाइज होता है. जहाँ पे लॉस है वहाँ पे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा. जहाँ पे प्रॉफिट है 25% 30% गवर्नमेंट ले जाएगी. Taxation is a very important aspect of all M&A deals, specifically the internal. Then there comes the stamp duty. आप किस तरीके से कर रहे हो. Are you doing asset sale? Are you doing slump sale? Are you actually merging the company? Tax treatment differs on both. सेलर को भी और बायर को भी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी secretarial guys. I'm not asking you to be expert on these matters, tax and stamp duty, but over a period of time, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, से यू आर ग्रेटर देन 3 years of experience, तो ये जो इम्पैक्ट है स्पेसिफिकली टैक्स का, स्टैम्प ड्यूटी का, इसको हाईलाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. आप अपने टैक्स टीम से सारे व्यूज लो. ये नहीं हो सकता कि आपने स्ट्रक्चर पूरा बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया और टैक्स का व्यू लिया ही नहीं. So taxation, stamp duty, payout, they play a crucial role. अगर आप प्रोफेशनल हो गए, यू मे बी प्रोफेशनल, आप प्रैक्टिसिंग सीएस बनोगे, आप एमएनए में जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओगे, यू हैव टू, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, यू हैव टू सी आप बाय साइड एडवाइजर हो या सेल साइड एडवाइजर हो. देयर वुड बी डिफरेंस. देखो, बाय भी आप हो सकते हो, सेल भी हो सकते हो. आपको तो पैसे से मतलब है, अपनी फीस से मतलब है. जो जो मैंडेट आ गया उसमें काम करना है. तो आपको देखना है वाइल सजेस्टिंग कि आप किस एंगल से सजेस्ट कर रहे हो. बोलोगे समझ में नहीं आ रहा. अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग स्टेजेस पर नेगोशिएशन, आई मीन सीधी सी बात है, नेगोशिएशन इज व्हाट, नेगोशिएशन विल हैपन इन बिटवीन व्हाट, बायर वर्सेस सेलर. अब आप अगर बायर साइड हो तो आपको स्टांस अलग होगा, और सेलर साइड हो तो सेम पॉइंट को आप यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट सेलर. तो उस हिसाब से भी आपको देखना है. This just we just discussed. These are all linked to the taxation impact.
कोई भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा, आई विल जनरली ट्राई एंड एड्रेस, और आई होप टू सी यू गाइस सून। ठीक है, नाउ जस्ट कवरिंग द सेक्रेटेरियल प्रोसीजर, यू गाइस आर पार्ट ऑफ चार्टर्ड सीएस नाउ। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, जस्ट लेट अस नो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in doing a merger through NCLT. This could be a very basic question. I think और advanced question हो सकता है, what do you mean by INC 28, or which form is filed for concluding of a merger transaction, accepting the final order of tribunal NCLT. तो ये बड़ा important है आपके लिए, not wasting too much of a time, क्योंकि मुझे पता है जितना डिटेल में भी समझाएंगे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, but I'll broadly cover few things so that you know theoretically the process. तो सबसे पहले तो ईयर सेक्रेटेरियल गैस, तो हमें देखना है कि अप्रूवल किसका है। एक सीएफओ कंपनी से खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, एक कंपनी सेक्रेटरी भी कंपनी खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। अल्टीमेटली सीनियर मैनेजमेंट का कुछ रिकमेंडेशन गया, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइज ऑफ दैट बिजनेस इज। आई थिंक व्हाट आई हैव लर्न, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि ठीक है नहीं। एनी यूनिट ऑफ अ बिजनेस जो ओवरऑल लेस देन 10% ऑफ द साइज है, उसको एक सीनियर, उसको बोर्ड इज अलाउड टू डिस्पोज और टू व्हाट यू कॉल इट, सेल। इससे ऊपर होगा देन यू विल आल्सो रिक्वायर द शेयर होल्डर अप्रूवल, यू माइट रिक्वायर। ये सेक्रेटेरियल है, यू गाइस आर एक्सपर्ट, यू कैन जस्ट चेक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, एक ऑफिसर कंपनी नहीं बेच सकता। सेक्रेटरी, आपको पता है कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेयर होल्डर, चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन, बोर्ड, सीईओ, मैनेजमेंट, सीएस एंड ऑल दैट स्टफ के एमपीज, बट यू नीड टू, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, यू माइट इवन डिजॉल्व द कंपनी, तो आपको बोर्ड अप्रूवल लगेगा। अगर ग्रेटर देन 10% ऑफ यूनिट है तो फॉर श्योर शेयर होल्डर अप्रूवल लगेगा, बट इट विल ऑलवेज बी बेटर कि आप शेयर होल्डर अप्रूवल ले लो, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो अभी आपको वहां पर मैं लेके जाऊंगा ही। ठीक है, तो वापस आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सपोज चाहे इंटरनल है या एक्सटर्नल है, दोनों के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा। एक स्कीम बनेगी, ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम। स्कीम का क्या मतलब होता है, मर्जर स्कीम, एमएनडी की स्कीम। भाई मर्ज हो रही है दो कंपनियां या डीमर्ज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपकी एक कंबाइंड डिटेल ऑफ द मर्ज एंटिटी, उसकी एसेट लायबिलिटी, कौन से एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर सपोज ए प्लस बी थे, तो दो अलग अलग कंपनियां थी, बी इज गेटिंग मर्ज इन सर्वाइविंग एंटिटी इज कॉल्ड से सी और से ए इटसेल्फ, तो बी की जो एसेट और लायबिलिटी है वो ए में मर्ज हो रहे हैं, या ए और बी के दोनों मर्ज होकर सी में मर्ज हो रहे हैं, तो आपको एक कंबाइंड बैलेंस शीट चाहिए होगी। एनी लायबिलिटी नॉट टेकन, कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैसे एड्रेस करोगे। लास्ट सेशन में मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, अगर आप जज हैं तो आप क्या क्या देखोगे। अगर आप ही जज हो, ये कोई ऐसा तो नहीं है बोर्ड ने अप्रूव कर दी, स्कीम अप्रूव हो गई, देयर इज अ कंपनीज आर रजिस्टर्ड थ्रू आरओसी, एमसीए वगैरह, तो आपके जो ऑफिसर होंगे या एनसीएलटी का जो जज होगा, वो क्या क्या देखेगा, वो देखेगा कि सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, स्पेसिफिकली क्रेडिटर्स के, स्पेसिफिकली माइनॉरिटी शेयर होल्डर के। तो अगर कोई लायबिलिटी छूट रही है, उस बंदे को भी आपको कहीं ना कहीं से अटेंड तो करना पड़ेगा। इधर दिस गाय विल बी पेड अपफ्रंट, वो मर्ज में नहीं जा रहा, उससे मर्ज में नहीं जा रहा तो फायदा ही क्या। यू हैव टू एड्रेस एवरी सिंगल पर्सन। आप एक लायबिलिटी को इन द मर्जर आप उसको वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते का मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते। There has to be some MIBOP, some ownership of that company, which will nothing be the merge company. आप बोलोगे सर वो मर्ज वाली ने नहीं दिया, तो अभी हम आएंगे इस पे क्रेडिटर्स अप्रूवल पर। ठीक है, उसके बाद स्कीम में कंसिडरेशन पे आउट मेथड, आप कैश में दे रहे हो, शेयर स्वैप कर रहे हो, कुछ कैश में दे रहे हो, कुछ शेयर्स में दे रहे हो, नो ऑल दैट स्टफ। सो जस्ट टू रिपीट, सबसे पहले आपको अप्रूवल चेक करना है, 10% से ज़्यादा है आपका बोर्ड अप्रूवल भी लगेगा ही लगेगा। मेरी एनर्जी कम है बट आपकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आप एक स्कीम बनाओगे, कोई भी बना सकता है। सीएस आर एलिजिबल टू अपीयर इनटू द एनसीएलटी, यू गाइस आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, बट लॉयर्स के पास, उनके पास सारा ड्राफ्ट सेट होता है। जो भी 50 क्लॉजेज में से 35 क्लॉजेज सेम होती हैं, 15 क्लॉजेज में नाम नूम इधर चेंज किया, वैल्यूएशन डाला, मेथड डाला, 10 एक क्लॉजेज हो जाती हैं जो मोर स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है, आपको ये भी बताना पड़ेगा स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। कुछ भी नहीं आपको फिर भी बताना पड़ेगा दैट वी आर कंसोलिडेटिंग
दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ, ये दिस माइट सेव आवर कॉस्ट एटसेट्रा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। तो एक ड्राफ्ट स्कीम का फॉर्मेट मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, यू कैन डाउनलोड, स्टैंडर्ड ही फॉर्मेट होता है ब्रॉडली। फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन जब एनसीएलटी को गई कि 10-15 दिन में रजिस्टर होकर उसकी हियरिंग आएगी। एनसीएलटी की स्कीम में आपको क्या क्या डालना है, मिनिमम बीआर तो जाएगा ही जाएगा, ड्राफ्ट स्कीम तो जा ही रही है, वैल्यूएशन रिपोर्ट जा रही है ना, कुछ एक चीज़ें स्टैंडर्ड, कुछ एक चीज़ें आप पहले भी लगा सकते हो, कुछ एक अप्रूवल कंसेंट आप पहले भी लगा सकते हो, ये भी नया ट्रेंड चला हुआ है। बट जनरली आप नहीं लगाओगे क्योंकि कुछ कोर्ट को भी इज्जत दोगे, कोर्ट को भी रिस्पेक्ट दोगे। फर्स्ट मोशन ऑर्डर को सुनने के बाद, ब्रॉड सुनने के बाद, अगर कोर्ट को लगेगा, कोर्ट का मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पर सीएस भी एलिजिबल हैं टू अपीयर नाउ, वेरियस सीएस हु आर प्रैक्टिसिंग देयर, तो उस वो आपको सुनेगा, दे विल बी ब्रॉडली अश्योर्ड, अगर बीआर हैं दोनों कंपनी के, दोनों के रेजोल्यूशंस हैं, दे कैन फील द इंटेंट, दे आर स्मार्ट गाइज। तो अगर उनको इंटेंट लगे कि हाँ चल रहा है, उनके अगर कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो 4-5 तो उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वी हैव एडमिटेड योर एप्लीकेशन, नाउ लेट्स गो टू टेक क्रेडिटर्स अप्रूवल, टेक योर शेयर होल्डर्स अप्रूवल। क्रेडिटर्स में भी 2 पार्ट होंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, सिक्योर क्रेडिटर्स हो गए, फिर वो जो चारों पांचों गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आरओसी, एमसीए, इनकम टैक्स, ऑफिशियल लिक्विडेटर, इनका आप अप्रूवल लेके आओ। अब क्या लगता है गाइस, ये अप्रूवल बड़ी आसानी से आ जाते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी में तो आपके सारे जो सेक्रेटेरियल रिकॉर्ड्स और फॉर्म्स हैं दोनों कंपनीज के, वो फुल होने चाहिए, कहीं ना कोई गलती निकल ही आती है, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिफोर आरओसी सेंड्स इन राइटिंग टू एनसीएलटी देयर आर इश्यूज, आप फटाफट उसी से 1-2 लेवल इंगेजमेंट होके सारी फाइलिंग को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्रेडिटर्स में कोई इशू नहीं होगा, हो भी सकता है, दिस इज समथिंग विच योर फाइनेंस गाय, योर मैनेजमेंट हैज टू मैनेज। आपको ये जो क्रेडिटर्स है, सिक्योर क्रेडिटर्स है, ही माइट नॉट लाइक टू गेट इनटू अ लॉस मेकिंग कंपनी, कि उसमें मैं मर्ज हो जाऊंगा, मेरे एसेट्स अब उसका एक्सक्लूसिव रहेगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। तो क्रेडिटर्स आप जिससे भी डील कर रहे हो, इसको मीटिंग ये ऑर्डर देगा, अभी तो एनसीएलटी ऑर्डर दे रहा है, बट आपको ये लेके आना है, इस व्हाट डू यू कॉल इट, ऑर्डर के बाद मैं यहीं पे कवर कर रहा हूँ कि किस कैसे लाते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आपको सारे क्रेडिटर्स से जो भी आपका मिनिमम कोरम है 90%, उनकी अटेंडेंस, अटेंडेंस के बाद अप्रूवल, ये मस्ट है। और ये हियरिंग कैसे होती है क्रेडिटर सीट होल्डर की, ये कोर्ट गवर्न, एक आप वेन्यू करेंगे हायर, उस वेन्यू पे एनसीएलटी ये सॉर्ट ऑफ नॉमिनेटेड जज आएगा, सिक्योरिटाइजर आएगा, सिक्योरिटाइजर और अगेन रोल कैन बी गिवन टू सीएस, यहाँ पे एक डिप्टी जज आएगा अगर उस दिन जज को कोई छुट्टी लेनी पड़ी तो, एंड ऑल दैट स्टफ, चेयरमैन और टू फिट इन चेयरमैन एटसेट्रा, जो भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आरओसी का मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब आप ये सारी चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ 1-1.5 मंथ, डेट भी कोर्ट ही बताएगा, सो जब 1-1.5 मंथ के बाद आपकी ये मीटिंग सीटिंग हो गई, सारे अप्रूवल आ गए, तो वो सारे जज से रेटिंग में जो आपको ऑर्डर मिलेगा, यहाँ के कमेटी के ऑर्डर, शेयर होल्डर, ये सब बैलेट थ्रू, अगर सपोज देर आर से 1000 क्रेडिटर्स, तो आपको देखना पड़ेगा, वो जज रिकॉर्ड करेगा, चेयरमैन जो भी इंडिपेंडेंट होगा, तो उसके बाद फिर आपका सब कुछ अप्रूवल के साथ आप सेकंड मोशन फाइल करेंगे। सेकंड मोशन में जनरली कोई इशू आता नहीं है, बट कोर्ट इज कोर्ट, अगर आपके सारे कंसर्न ठीक है, सारे अप्रूवल ठीक है, कोई लेफ्ट आउट लाइबिलिटी नहीं है, तो वो आपका ऑर्डर पास कर देगा। जनरली कुछ ना कुछ इशू आ जाता है, तो एक थर्ड मोशन तक जाती है, बट थर्ड मोशन इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड सेकंड मोशन, and if all approved or any other further modification sought in order, if no further modification is sought in order, तो फिर जज एनसीएलटी अपना ऑर्डर फॉर द मर्जर विल पास आउट। कंपनीज, बोथ द कंपनीज, specifically the company which is getting demerged, they will have times, generally 30 days, to accept the order, and they will accept the order in INC 28, and as soon as that form will appear, इस कंपनी का नाम, बी कंपनी का नाम एमसी के रिकॉर्ड से डीमर्ज में चला जाएगा। I know I was very quick, but if you have any question, you want to attend the detailed session, you can stay tuned to the channel, आपको मिलेगा। Now, most important, not most important, this was also important for secretarial students, secretarial procedure, आपका आएगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एमेंडिंग, जिसमें अगेन सेम चीज, आप बाय साइड एडवाइजर हैं या सेल साइड एडवाइजर हैं, आपको
दोनों प्रोमोटर्स की है किसी भी लेवल की, सपोज यू विल से अदानी जी हैं और से इधर कोई वट एवर यू कैन कॉल इट जीवीके है, इनकी कोई मीटिंग तो कराएगा। जीवीके सपोज अपना पावर प्लांट अदानी जी को बेचना चाहता है, तो यहाँ का जो एडवाइजर होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा, जनरली कई बार तो चेयरमैन लेवल पे भी कनेक्ट होते हैं, तो ये आप उनको एडवाइस कराओगे। इनिशियल डीडी हुआ, अभी अभी आप मीटिंग ब्रॉड मीटिंग कराई है आपने। इनिशियल डीडी ब्रॉड मीटिंग का मतलब सीएफओ लेवल, सीईओ लेवल, एमएनडी टीम लेवल। इनिशियल थोड़ा सा डीडी हुआ, अगर इंटरेस्ट आ गया, सपोज मिस्टर अदानी, मिस्टर लिखना पड़ेगा भाई, अगर मिस्टर अदानी वांट्स टू एक्वायर दिस पावर प्लांट और मिस्टर अदानीज ग्रुप, तो फिर आपका मैनेजमेंट और प्रमोटर लेवल एक मीटिंग हो जाएगी। भाई एक्चुअली में इंटरेस्ट है क्या, कोई छोटे लेवल पे कोई ऐसे टाइम पास तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। प्रमोटर लेवल पे मीटिंग हुई, क्योंकि देखो आपको धंधे में रहना है तो आप सीरियस होना पड़ेगा। कुछ एक लोग होते हैं जिनका मार्केट में नाम खराब होता है, वो सीरियस नहीं होते हर चीज़ को लेके, वो अपनी काउंटर पार्टी की इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते, या फिर एक जो भी धंधे के नॉर्मल वसूल होते हैं वो नहीं फॉलो करते, उनका नाम बदनाम होता है। यहाँ पे एक सीरियस मीटिंग हुई है, बट अभी कोई डील नहीं क्लोज हुई, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन आ गई है दैट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू बाय। फिर आपकी एक टर्म शीट एग्रीड हो जाएगी। टर्म शीट में बेसिकली मेन चीज़ तो आपका कंसिडरेशन एग्री हो गया कि इस ब्रॉड बॉल पर फिगर पे हम लेंगे आपकी कंपनी। सिनर्जीज वगैरह आपस में डिस्कस हो गई। क्या टर्म शीट इन्फोर्सेबल होती है? टू सम एक्सटेंट इट इज, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वर्डिंग्स एंड योर इंटेंट। अगेन बाय साइड भी हो, सेल साइड, दोनों साइड कौन जितना सीरियस है उस हिसाब से टर्म शीट को आप इन्फोर्सेबल करा सकते हो। बट मोर और लेस यू विल से इन जनरली आई विल से 50-50। तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जिसने एक्चुअली डिस्क्लोज कर दिया, तो दे विल और नॉट अननेसेसरली हर तरह के इम्पैक्ट होते हैं। बट हैविंग सेड, पूरी तो इन्फोर्सेबल ये नहीं हो सकती, पूरी का मतलब इन्फोर्सेबल हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ डन डील। इसके बाद आपका डिटेल डीडी होगा, तभी तो आपको जो सेलर कंपनी है सारी डिटेल तो तभी देगी ना जब आपसे उसका ब्रॉड लेवल। ये थोड़ी ना कि आपने सारे पेपर 3 महीने देखे उसके बाद बोला मैं तो 200 करोड़ दूंगा, एसेट है 1000 करोड़ का। तो ये सारी चीजें हो गई। सो डिटेल डीडी होगा। डिटेल डीडी के बाद फिर हमारा पैरेलली एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट भी नेगोशिएट होते रहेगा। इसमें बहुत सारे CS CP जाएंगे जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पूरा इसे अराउंड 50-60 से लेके 100 पेज का एक एग्रीमेंट बनेगा। अगेन इसमें सारे जितने भी तरीके के इशूज हो सकते हैं वो डिस्कस होंगे, बट फाइनली ये एग्री होगा कि भैया इतने इतने पे कंपनी खरीदी जा रही है। और अपने SHA साइन कर लिया तो क्या डील क्लोज थोड़ी ना हुई। SHA साइन करने के बाद अभी ना तो पैसे ट्रांसफर हुए ना अभी शेयर ट्रांसफर हुए, तो SHA SP में CP और CS होंगे। अब बोलोगे CS क्या होता है सर, CP क्या होता है? तो CP इज कंडीशन प्रेसिडेंट, the items which we necessarily have to address for effectiveness of share purchase agreement, share sale agreement, तो कई बार SSA भी बोल देते हैं। तो उसमें मेन 3 चीजें तो होंगी ही होंगी। अपने SHA सबने साइन किया, भैया धनी जी ने साइन कर लिया, यहाँ से जीवीके मिस्टर जीवीके ने साइन कर लिया, चलो जीवीके जी को भी मिस्टर बोल देते हैं, इन्होंने साइन किया या फिर इनकी टीम ने साइन किया, बोर्ड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया। पैसे तो बाद में आएंगे ना। तो SHA की जो मेन 3-4 जो सीपेज होती हैं, सबसे पहली होगी मैनेजमेंट चेंज, अगर चाहिए तो। भैया पहले जो कंपनी चला रहा था वो बंदा कंपनी नहीं चलाएगा, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। फिर आपकी आएगी कि भाई शेयर भी ट्रांसफर होने हैं, तो आप बताइए पहले शेयर ट्रांसफर होने चाहिए या पैसे लेने चाहिए? आप कंपनी बेच रहे हो या कंपनी खरीद रहे हो, दोनों चीज़ों में आपका पोजीशन डिफरेंट होगा, क्योंकि आप तो बोलोगे कि भाई मेरे को पहले पैसे दो तभी मैं शेयर दूंगा। जो बंदा है वो बोलेगा यार पैसे पूछे तो हम देते रहेंगे, आप पहले शेयर दे दो तभी हम पैसे देंगे। तो इन सारी चीज़ों में कई बार एस्क्रो चलता है, दोनों चीज़ें साथ साथ हों। एक थर्ड पार्टी, एक बैंकर अपॉइंट हो गया या एस्क्रो एजेंट, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, he will release the funds to Mr. GVK as soon as he cites the shares or as soon as Mr. GVK has given instruction for transfer of shares. So we'll try our level best कि किसी भी एक प्रमोटर की के पास कोई अनड्यू एडवांटेज ना रहे। बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती हैं $1 बिलियन की, नो 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 टेक चांस, इवन कोई ऐसी बात नहीं है। तो छोटे लेवल पे जितनी जितनी बड़ी आपकी वैल्यू उतनी बड़ी आपकी इम्पोर्टेंस। बट एनी बिग ट्रांजेक्शन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि एस्क्रो होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे नहीं हुआ शेयर ट्रांसफर या पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, आपकी तो नींद उड़ जाएगी।
क्योंकि फिर वो तो लिटिगेशन में जाएगा, वो तो पता नहीं चीज़ें होंगी। जनरली होता नहीं है ऐसा, बट हो सकता है। सो व्हाई यू टेक चांस। एक नई एजेंसी बनी हुई है, एस्क्रो मैकेनिज्म बना, उसको फॉलो करते हैं। आई हैव विटनेस्ड इन माई लाइफ इटसेल्फ कि अगर एस्क्रो नहीं होता है, इशू आ जाते हैं, पैसे चले गए, शेयर नहीं आते, शेयर आ जाते हैं, पैसे नहीं आते। जनरली उल्टा ही होता है, पैसे चले जाते हैं, शेयर नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ 1 2 3 रीजंस। लास्ट में क्या चीज़ें निकल के आती हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कि शेयर पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी, वो लोगों ने पे नहीं की होती। दैट्स अ सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल अमाउंट, चाहे वो 0.5% ही हो या 0.1% ही हो या 10 लाख रुपए हो। अब भाई जो आपका डीमेट वाला बंदा है वो तो नहीं करेगा, लॉ ही नहीं अलाउ करता। तो उसकी वजह से कई बार डिले हो जाता है। फिर यू डोंट नीड टू टेक चांस, क्योंकि ये सब डीमेट फर्म की सिक्योरिटी है। कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है आपको। मैनेजमेंट चेंज भी इंपॉर्टेंट है। किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले रहे हो, आपको नीचे जाके सारे एम्प्लॉयज से अपने बात कर ली। CS क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी। CS इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। सो प्राइमरीली अगर आपने कोई स्कूल खरीदा, आपने कोई पावर प्लांट खरीदा, आपने कोई केमिकल फैक्ट्री खरीदी, तो जितने भी लाइसेंसेज हैं वो पहले थोड़ी ना चेंज करा लेगा जो सेलर है। और ये लाइसेंस एक दिन में चेंज भी नहीं होते। आपको किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को, CBSE को अगर आपने डाला, या जो भी ड्रग रेगुलेटर है, या वट एवर, अगर टेलीकॉम है तो ट्राई है, तो उसमें जितने भी लाइसेंसेज वगैरह होते हैं उसके लिए जो भी रेगुलेटर है उसको जाएगी रिक्वेस्ट। अगर कंपनी कंपटीशन कमीशन की मैंने बात नहीं की यहाँ पे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि कंपटीशन कमीशन इसमें टच नहीं होता था। अदरवाइज बहुत सारे जो बड़े मर्जर होते हैं उसमें तो अगर दो एक सेक्टर की 2 मेजर कंपनी जोड़ी हैं तो पहले कंपटीशन कमीशन का भी अप्रूवल लगेगा। 6 महीने से 1 साल का काम तो यही होता है। एनी हाउ, तो लाइसेंसेज ट्रांसफर होने होते हैं इन सब को करने के लिए, कि बाद में जो सेलर है वो इस सब पे फोकस करेगा या नहीं करेगा, तो आपको कुछ होल्ड बैक अमाउंट रखना पड़ता है। होल्ड बैक अमाउंट कैन बी से 10% to 15%, और वट एवर, इट्स ऑल ए नेगोशिएशन कितना इंपॉर्टेंट लाइसेंस है। और एडजस्टमेंट टू वर्किंग कैपिटल प्रायर पीरियड आइटम भी होते हैं। आपने सपोज एक कंपनी खरीद ली, आज 5 मार्च है, आपने 31 मार्च को कंपनी क्लोज कर ली। आप भी अकाउंटिंग वाले हो, हम भी अकाउंटिंग वाले बंदे हैं। जो पुराने कोई बिल आए उसको कौन जिम्मेदार होगा? जो 31 में से पहले की सर्विसेज है उसका उसका रिस्पॉन्सिबल सैलरी होगा। तो एक कैप बन जाएगा, कुछ अमाउंट अपने होल्ड बैक में रखा हुआ उससे पे करोगे। तो ये वर्किंग कैपिटल ट्रू अपवर्ड होता है कि आप बैलेंस शीट जो आप दोगे लास्ट डे पे वो तो अनऑडिटेड होगी। ऑडिटेड बैलेंस शीट को आप 1 महीने में ट्रू अप करा के कोई एडजस्टमेंट करोगे। एक चीज गैज मैंने मिस कर दी जल्दबाजी में बताते हुए। सो ब्रेक फीस क्या होता है? सो ब्रेक फीस क्या होता है कि जब ये डिटेल डीडी, यहाँ पे इनिशियल डीडी पे एक टर्म शीट साइन हो गई, अब डिटेल डीडी में अगर कुछ गलत नहीं निकला, नो मटेरियल इशू फाउंड, कोई भी बड़ी एरर नहीं निकली, फिर आप अगर ये डील को तोड़ते हो, SHAS पे नहीं करते, देन आइडियली आपको ब्रेक फीस देनी चाहिए परचेजर को। अगर आप सीरियस हो देन यू विल एग्री टू दिस कंसेप्ट परचेजर। अदरवाइज वो सारा डीडी करके, सारी आपकी नो हाउ समझ के, सारी आपकी डिटेल डीडी करके जा सकता है। तो ब्रेक फीस का कंसेप्ट, बट देखो, अगर उसको डीडी में कुछ गलत निकला, डीडी में उसको निकला कि लैंड आपके नाम पे नहीं है, डीडी में निकला फॉरगेट अबाउट लैंड, शेयर ही आपके नाम पे नहीं है, डीडी में आपको निकला कि आपके शेयर पे किसी थर्ड पार्टी ने केस कर रखा है, डीडी में आपको निकला कि आपने इतने सारे जो डेटर दिखा रखे हैं 1000 करोड़ के, इसमें से 800 करोड़ ने तो आपको पैसे देने से मना कर रखा है, तो फिर आपको वो ब्रेक फीस पे आपका कोई बेसिकली मटेरियल इशू मिला, फिर तो आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। और आपने कोई एडवांस फीस दे रखी है, कई बार एडवांस भी ले लेते हैं लोग टोकन, तो वो भी वापस आ जाएगा अगर कोई इशू आया। बट अगर आपने अपनी मन गढ़ा मैं तो अब लेना ही नहीं, मुझे तो अब चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको वो ब्रेक फीस पे करनी पड़ सकती है। तो जस्ट टू क्विकली रिपीट, हमने डिस्कस किया देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मर्जर्स। सेक्रेटेरियल प्रोसीजर में हमने ब्रॉड डिस्कस कर लिया, और कि बोर्ड अप्रूवल लगता है, स्कीम फर्स्ट मोशन बनती है, फिर सारे कंसेंट्स लगते हैं, कंसेंट्स को मैनेज करना पड़ता है टाइमली। इट्स अगर आपका एक भी कंसेंट मिस हो गया, आपको दोबारा मीटिंग करानी पड़ेगी, दोबारा हॉल बुक कराना पड़ेगा। छोटी से छोटी मीटिंग कराने में भी आपका 50-60 हज़ार से लेके 5-6 लाख मान लो, क्योंकि जजेस की भी फीस तो दोगे, चेयरमैन वगैरह की, तो वो खर्चा आ जाता है आपका। फिर सेकंड मोशन हो गई, सेकंड मोशन में जनरली कोई ना कोई एरर निकालते हैं। यू वुड बी लकी अगर आपको नहीं मिला, यू वुड बी क्वाइट एफिशिएंट, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मोर स्पेसिफिकली ऑफिशियल लिक्विडेटर RCA ROC को
उनको पता होता है मिनट के फॉर्मेट पे चेंज कर देंगे, आपके मिनट पे साइन नहीं है, अटेंडेंस नहीं पता है, नहीं मतलब इररिलेवेंट चीज़ें। हैविंग सेड, इफ वी गो बाय द स्क्रिप्ट, दोज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आईटी डिपार्टमेंट भी काफ़ी बार इशू करता है, अगर आपका कोई असेसमेंट ओपन है तो एप्लीकेशन साइन होगी, स्टिल यू हैव अ चांस टू, इवन आफ्टर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया मर्जर, उसके बाद प्रमोटर ही में मर्ज करना ही नहीं है, तो आप आईएनसी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब यू हैव स्टिल सम टाइम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बट एक बार आपने आईएनसी 28 फाइल कर दिया तो एमसीए के रिकॉर्ड से कंपनी का नाम चला गया। फिर हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया कि मर्जर में पैरेलली सेक्रेटरियल चीज़ों के साथ साथ एक्सटर्नल मर्जर में क्या चल रहा है। हमने डिसाइड आपको ब्रॉड बता दिया, क्योंकि यू आर ऑल यंग प्रोफेशनल नाउ। बाय साइड भी आप कर सकते हो, सेल साइड भी कर सकते हो, दोनों साइड आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होगी। आपने अगर एक बाय साइड कर लिया, आपको पता चलेगा कि सेल साइड क्या करता है, देन यू कैन लर्न फ्रॉम देम। जैसे ब्रेक फीस है, इफ यू आर ए सेलर यू विल प्रेफर स्ट्रांगली कि ये हो। If you are a buyer and you are not keen, or depends upon your interest, first of all you will not prefer, you might put up a sort of break fee type of penalty on the seller. You might sign an RFR, right of first refusal, exclusivity, etc. एक्सक्लूसिव मतलब मेरे साथ किसी दूसरे बंदे से बात तो नहीं कर रहा। डीडी आपको पता ही है, मैंने आपको नई दो चीजें बता दी, सीपी एंड सीएस। सीपी क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट साइन हो गए, कुछ तो मिलेगा 24 घंटे का टाइम फॉर ट्रांसफर और ऑल दैट स्टफ। देयर कैन बी वेरियस थिंग्स जिसको आपको सीएस में भी लेके जाना पड़ेगा। जब सीएस में जाती है तो अगर सपोज आपने 1000 करोड़ की कंपनी बेची है, कुछ अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट आपको होल्ड बैक रखना पड़ेगा टू इंश्योर दैट सीएस गेट्स कंप्लीट। थर्डली आपको थोड़ा सा छोटा मोटा अमाउंट है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए भी होल्ड बैक पे रखना पड़ेगा, विच समटाइम में भी क्या, लाइक मैंने एक डील की थी, उसमें था कि $400,000 हमने रख लिए, अगर कोई भी खर्चा $400 से कम आता है तो फिर हम कुछ मांगेंगे नहीं, सो उसी उसी के अंदर हो जाएगा, उसके ऊपर आता है देन विल डिमांड इट। पीपीटी में बहुत सारी चीज़ें और मैंने दी हुई हैं, नोट्स वहाँ पर सेव हैं, और मैंने इसमें सारे जो बड़े मर्जर्स एक्विजिशन हुए हैं उनकी क्या कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्विटर, एलॉन मस्क, बायजूस, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब मैंने आपको बनाकर भी उसमें दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आई विल ऑल्सो प्रिपेयर सेशंस सेपरेटली। ऑल माई वेरी बेस्ट विशेज, I'll say focus hard on your learning and wish you all a very very bright future ahead. I'm sure you will bring more repute to the profession and to the CS fraternity at large. Take care.